Hi investors and traders, welcome back to the channel. Again, let's talk about how did the market go today. और अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा है, सबसे पहले आप जाके देखिए, मैंने बोला था एक बहुत टाइट रेंज बैंक निफ्टी की रहेगी 4100 से लेके 41,000 से लेके 41,500 तक। आप देखिए बैंक निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी एग्जैक्टली एट 41,000, सपोर्ट लिया और विद इन 41,500 के क्लोजिंग दी। इससे पहले मैं आगे वीडियो के चलूं, आई वांट टू शेयर वन important थिंग. In case you people are not being able to join my Telegram channel, just go to any of my video, just go to any video and go to the description box, and you will be able to see, the Telegram link. In case you're not being able to, log in through that, reach out on this number. Please do not search me on Telegram. I'm telling you, a lot of people have made lots of fake accounts. So please do not search me on Telegram. You may find some wrong people. And one way to know that it's the right Stock Pro channel is to know that we don't give any advisory. We don't have any paid advisory, no matter whatsoever. So अगर आपको कोई बैंक निफ्टी की एडवाइजरी मिल रही है या कोई भी एडवाइजरी पेड एडवाइजरी मिल रही है, तो बी केयरफुल, दैट्स नॉट अस. हम लोग कोई एडवाइजरी नहीं देते. अगेन आई एम रिपीटिंग, यू गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आप लिंक को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से, आप नंबर्स जो नीचे दिए हैं उन पे कांटेक्ट करिए. मेरी टीम आपको प्रॉपर लिंक देगी, आपको हेल्प करेगी और प्रॉपर आपको चैनल ज्वाइन कराएगी. Hope it's absolutely clear. There should be no doubt about it. You will not search me on Telegram. Absolutely ensure that, because there are a lot of people who have opened, fake channels. So please be careful. Now let's start. I don't know how many of you joined us for the live trading today. अगर आपने हमको लाइव ट्रेडिंग में ज्वाइन किया है, नहीं ज्वाइन किया है, तो जाके यहाँ पे सुनिए. इस लाइव ट्रेडिंग में हमने PEL की कॉल ऑप्शन दी थी 20 रुपए में बाय के लिए. आज उसने हाई लगाया, कुछ 37-38 रुपए का हाई लगाया है. ऑलमोस्ट लाइक 90% रिटर्न इन अ सिंगल डे. आप जाके कमेंट्स पढ़िएगा, आप जाके कमेंट्री पढ़िएगा, एंड यू विल सी पीपल हैव मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी. अगर आप यहाँ जाके कमेंट्री भी पढ़ेंगे ना, आप लाइव चैट पढ़ेंगे, you will see a lot of people have made good amount of money. यहाँ पे कहीं पे भी आप देखेंगे तो people have made good money everywhere written. 1100 profit, 340 profit, 500 profit, 2000 profit. So you will see that how much money people have made. So do join me for the live trading every single day from 10 to 11. So don't forget, you will learn the trading psychology. You will understand how we filter the trades. Like, at least we won't tell you the method, but at least you will know exactly how successful traders, or the traders who are making good money or selecting good stocks, how they really filter the stocks, so, and what they look for. So all these things you can understand. So again I'm back here, as I told you कि बैंक निफ्टी बहुत टाइट रेंज में एक्सपायर होगी 41,500 and 41,000. Exactly similar thing happened, and I'm sure I'm sure a lot of you must have made good money. I'm not saying that on my analysis, but I'm sure somewhere or the other this analysis might have helped you. So now, by looking at Bank Nifty, the stance of Bank Nifty looks extremely strong to me. And one more thing that I feel, today, this gap down and then this powerful candle is actually demolishing the uncertainty that was lying in the market. जो मार्केट में इतने दिनों की अनसर्टेनिटी थी, आप एक चीज नोटिस करिए, नीचे जो वॉल्यूम्स है आज, द ग्रीन वॉल्यूम्स आर बिगर देन द पास्ट वॉल्यूम्स. So now what matters, what really matters at this point of time, कि बैंक निफ्टी एक 41,800 के ऊपर क्लोजिंग दे, जो पास्ट बैरियर है बैंक निफ्टी के, उसके ऊपर क्लोजिंग दे. और अगर 42,000 के ऊपर बैंक निफ्टी जाती है तो लाइफ टाइम हाई क्रॉस हो जाएगा और सस्टेन करती है. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर बैंक निफ्टी टू सस्टेन. नाउ व्हाट आई रियली वांट टू शो यू हियर. आप बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन पे जाके देखिए क्या हो रहा है. तो हियर आई एम, और आपको जाके देखना है बैंक निफ्टी के मंथ एंड कॉल ऑप्शन पे. मंथ एंड के कॉल ऑप्शन पे जाके देखिए कि क्या हो रहा है. तो आप नोटिस करेंगे कि 42 आज जो है मंथ एंड पे, सॉरी दिस इज द 3rd November, आई एम गोइंग टू गो टू द मंथ एंड.
आप मंथ एंड पे जाके देखिए कि कॉल ऑप्शंस की क्या एक्टिविटी हो रही है। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ से कॉल अनवाइंडिंग हो रही है, कॉल्स में अनवाइंडिंग हो रही है, मतलब देयर इज अ फियर in the call writer's mind. Although I need to exit my positions tomorrow, I have sold one 42,000 call option, month end call option, and I have sold one lot of put option. So I need to change it, you know, like I'm going to roll it over in the upper direction, maybe 42,500 or maybe 43,000. I'll see where I go. But what I'm trying to tell you here is that option writers are fearful. Option writers are for sure fearful, and they're expecting Bank Nifty to go above 42,000. Whereas if I look into the support, there is a support which is formed at 41,500. ये एक important information है. इसका reason ये है कि in the money call put option increase हुई है. Means जो support बन रहा है, लोगों ने ऊपर की तरफ shift किया. सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट होने का मतलब है कि ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि मंथ एंड में जो निफ्टी एक्सपायर होगी, अगर मैं देखती हूँ तो 42,500 और 41,500 इस 1000 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी एक्सपायर होती हुई दिख रही है इन द मंथ एंड. Okay, now with this information, let's go on and check what is happening in the Nifty, because if they both move together, अगर दोनों साथ साथ मूव करते हैं तो एक अच्छा ब्रेकआउट आता है. और आपने नोटिस किया होगा, ये मैंने ट्रायंगुलर वेज बहुत समय से बना रखी है. आज बैंक निफ्टी ने वहीं से सपोर्ट लिया है. अगर आपको कल मैंने जो वीडियो बनाया था, अगर आपको याद है तो अगर कोशिश करिए याद करने की, मैंने आपको बोला था कि अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे सिनेरियोज बताए थे. मैंने कहा था अगर यहाँ पे बीच में कहीं पे गैप बैंक निफ्टी ओपन होती है, निफ्टी ओपन होती है और लो को ब्रेक करती है, तो हम सीधा शॉर्ट करेंगे. दूसरा मैंने आपको बोला था कि हो सकता है कि निफ्टी गैप डाउन खुले और इस गैप को कवर करने के लिए ऊपर आए और फिर वहां से थोड़ा रिवर्सल ले. तो एग्जैक्टली सेम थिंग हैपन. निफ्टी ओपन गैप डाउन एंड फिर वहां से ऊपर गई और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके निफ्टी थोड़ा नीचे आके बंद हुई है. तो ये सारी चीजें अगर आप थोड़ा थोड़ा समझेंगे, देन डेफिनेटली योर ट्रेडिंग स्टाइल विल इम्प्रूव लाइक एनीथिंग. तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, मैं क्विकली आपको मेरे रडार पे जो 5 स्टॉक्स हैं, 4 या 5 स्टॉक्स हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ जल्दी से. सो एक स्टॉक बहुत समय से इसमें जबरदस्त बाइंग आ रही है, बट अभी भी कोई ब्रेकआउट नहीं आया है, वो है एंड्योरेंस टेक. ये बॉटम्ड आउट स्टॉक है, बॉटम्ड आउट स्टॉक है. बहुत समय से इसमें जबरदस्त बाइंग आई जा रही है, बट कोई ब्रेकआउट नहीं हो रहा है. ठीक है, एंड्योरेंस टेक वैसे एक अच्छा स्टॉक है, मतलब फंडामेंटल अभी मैंने रिसेंटली नहीं चेक किया है, but I've traded a lot of time in this particular stock. So endurance tech मुझे अच्छा लग रहा है कि क्योंकि काफी समय से इसमें एक कंसोलिडेशन जोन चल रहा है. हाउ डू आई नो इट्स कंसोलिडेशन जोन? क्योंकि इसका लो भी ब्रेक नहीं हो रहा और हाई भी नहीं ब्रेक हो रहा है. इसका मतलब कि प्राइस जब एक रेंज में ब्रेक करती है और एक लोअर वैल्यू से हमेशा बाउंस करती है और अपर वैल्यू से हमेशा नीचे आती है बाउंस करके, देन इट बिकम्स अ कंसोलिडेशन जोन. सो अब कंसोलिडेशन जोन का मतलब है कि अगर ये 1400 के ऊपर जाता है स्टॉक, तो आपको एक डेफिनेटली 100 पॉइंट का मूव इस स्टॉक में आता हुआ जरूर दिखेगा. ये तो हो गया एक कैश का स्टॉक. एक और मेरे पास कैश का स्टॉक है जिसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है आज, अल्काइल अमाइन. अल्काइल अमाइन ने काफी दिनों की जो अनसर्टेनिटी थी, पहले तो एक डबल बॉटम बनाया. इफ यू नोटिस हियर, इट हैज मेड अ डबल बॉटम. पहले एक डबल बॉटम बनाया. एंड मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज लैंग्वेज के बारे में मत लिखा करिए. मैं जैसे बोल रही हूँ मैं वैसे ही बोलूंगी, मिक्स्ड हिंदी इंग्लिश और जैसे भी, क्योंकि आई एम जस्ट sick and tired of somebody asking to speak in English, somebody asking to speak in Hindi. I'm going to continue the way I'm continuing. तो आपको जैसे अच्छा लगता है तो प्लीज वैसे देखिए, बट मैं इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगी. अगर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हिंदी वाली जनता को भी सेटिस्फाई करूँ और इंग्लिश वाली को भी, बट बार बार लैंग्वेज को लेके प्लीज मत लिखिए. आई एम गोइंग टू मेक द वीडियोस द वे आई एम मेकिंग, राइट. तो कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प हो, बट बार बार ऐसे बोलने से आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया. सो व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू हियर, ये एक डबल बॉटम बना था, फिर उसके बाद यहाँ पे स्टॉक ने रेस्ट किया है और आज एक ब्रेकआउट दिया. तो अल्काइल अमाइन जो है, मुझे 3040 3050 के ऊपर एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है. वो 150 200 पॉइंट्स अच्छा लग रहा है, इसमें एक मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है.
सो दैट इज माय सेकंड कैश स्टॉक। नाउ मैं एफएनओ स्टॉक्स की बात करती हूँ। तो सबसे पहला स्टॉक रहेगा बीईएल का। बीईएल में बहुत जबरदस्त बिल्डअप्स हो रहे हैं और काफी समय से हो रहे हैं, और मैंने इसकी कॉल ऑप्शन भी अपने मेंबर्स को दी हुई है और हमने इसको आज फ्री चैनल पे भी डाला है। बीईएल में अगर ब्रेकआउट आता है 110 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो पहला टारगेट इसका 114.5 का 100% रहेगा, और अगर 114.5 क्रॉस हो जाता है देन ये स्टॉक और ऊपर की तरफ चल देगा। आई डोंट नो आप लोगों को कितने लोगों को याद है, मैंने बीईएल के ऊपर एक वीडियो बनाया था और मैंने इसका टारगेट कुछ उस समय ये 240 पे था, जहां तक मुझे याद है ये स्टॉक 240 पे था और मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था और मैंने इसका 3:1 का स्प्लिट हुआ है, तो मैंने इसका टारगेट दिया था 350 का। तो 1:3 का स्प्लिट हुआ है। अगर ये अभी 110 पे है तो इसका मतलब इसकी करंट वैल्यू उस हिसाब से 330 की होती। तो मेरा टारगेट 350 का था और वो इट्स जस्ट अबाउट टू हैपन। जब मैंने वो स्टॉक डिस्कस किया था वो स्टॉक 240 पे था। तो आप जाके मेरे चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इसके बहुत सारे फंडामेंटल्स डिस्कस किए हैं। आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू फिल्टर आउट और नॉट, बट मैंने 2-3 महीने पहले दिया था, जहां तक मुझे याद है। ये स्टॉक मैंने 3 या 4 महीने पहले दिया था। आपको मतलब ढूंढना पड़ेगा, मे बी आई विल बी एबल टू फिल्टर आउट एंड गिव इट यू, बट यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। आई हैव गिवन अ टारगेट ऑफ 350। सो 350 का टारगेट एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो ये लगा चुका है, क्योंकि ये 115 का हाई है। 115 इंटू 3 इज 345। मेरा टारगेट था 350 का और ये टारगेट ऑलरेडी ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है 15 सितंबर को। बट अगेन अगर 114 का हाई ब्रेक होता है then I'm not expecting less than 150, 160, 130-40 का टारगेट इसमें जरूर आता हुआ दिखाई देगा। ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड इट इज इन ट्यून विद मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया स्टोरी। सो उसके बाद जो मेरे रडार पे दूसरा स्टॉक है वो है श्री सीमेंट। आज ये हमने चैनल पे भी डाला था, बहुत जबरदस्त बिल्डअप्स हुए थे यहाँ पे, आप देखिए। उसके बाद स्टॉक ने 31 अक्टूबर को एक ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट करके एक और फ्रेश ब्रेकआउट आने की तैयारी में खड़ा हुआ है। तो अगर ये 23,000 के ऊपर जाता है, डेफिनेट मूवमेंट मुझे आता हुआ दिखाई देगा स्टॉक में, फॉर अ टारगेट ऑफ अबाउट 24,000 एंड 25,000। तो ये मेरा दूसरा स्टॉक था। तीसरा स्टॉक है HEL। HEL में आप लोगों को पहले भी देख चुकी हैं, बट वहां से लाइक मुझे जो इसमें एंट्री लेनी है वो 2565 या 66 के ऊपर लेनी है। आज भी इसमें ओपन इक्वल टू लो एंड दीस अनसर्टेनिटीज हैव बीन डिमोलिश्ड। क्लोजिंग वाजंट दैट गुड, बट अगर ये कल स्टॉक 2565 के ऊपर जाता है तो 2630 2640 के टारगेट डेफिनेटली आते हुए मिलेंगे। ओके, उसके बाद मेरे पास दो और स्टॉक है और इम्पोर्टेंट लर्निंग प्रोसेस है उसमें, जो आप समझ सकते हैं। मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगी जो आपको सीखने से इम्पोर्टेंट, लाइक यू विल फाइंड इट नाइस टू लर्न। सो दिस इज Zeal, and now Zeal ने डबल बॉटम बनाया है इन द लास्ट 28 अक्टूबर, 29, 31 एंड 1 नवंबर। 1 नवंबर एंड 28 अक्टूबर को Zeal ने डबल बॉटम बनाया है। उसके बाद Zeal is on the verge of reversing out and I expect it to give a breakout above 270. 270 को अगर ये ब्रेक करता है तो 275, 280, 285 ये मेरे टारगेट्स रहेंगे Zeal में, और स्टॉप लॉस कुछ रहेगा 261 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद मेरा जो लास्ट स्टॉक है उसको आप लोग थोड़ा आराम से समझिएगा, अदानी ENT। बहुत लोगों का इस स्टॉक को लेके इंटरेस्ट रहता है, और आपको याद होगा मैंने आई डोंट नो बहुत पहले शेयर किया था कि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे थे, एंड आई हैव सेड दैट देयर इज अ ब्रेकआउट दैट सीम्स टू बी कमिंग अप, एंड फ्रॉम वहां से स्टॉक ने 3000 से चल के 3800 तक का हाई लगाया था। अब आप यहाँ पे देखो, इस जगह पे इसी तरह के बिल्डअप्स हो रहे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ बिल्डअप्स आर हैपनिंग ओवर हियर। और उसके बाद स्टॉक ने परसों, मतलब मंडे नहीं ट्यूसडे को उसी तरह के ब्रेकआउट दिए थे। ये बिल्डअप्स हो रहे थे, यहाँ पे धीरे 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 एक्यूमुलेशन हो रहा था। जो ये लोगों ने शॉर्ट कर रखा था वो लोग अनवाइंड कर रहे थे और कुछ लोग फ्रेश पोजीशंस बना रहे थे। तो यहाँ पे इस जगह को बोलते हैं हम लॉन्ग बिल्डअप, राइट? शॉर्ट अनवाइंडिंग और ये लॉन्ग बिल्डअप है।
आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट किया था, जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया था, ये शॉर्ट था, ये शॉर्ट कवरिंग है, ये लॉन्ग बिल्डअप है, राइट? अब लॉन्ग बिल्डअप में हमको वो देखना है कि क्या ब्रेकआउट आते हैं। अगर ये 3625 के ऊपर जाता है स्टॉक, तो डेफिनेटली एक टारगेट ऑफ 3800, 3850, 3900, 4000 के टारगेट्स आने वाले समय में इसमें आते हुए मुझको दिख रहा है। तो मार्केट मुझे अच्छा लग रहा है और अर्निंग्स भी आई नहीं है, शायद आने वाली है, मे बी आज के दिन आने वाली है, but Adani Enterprises is definitely looking good. So once again, let me consolidate Endurance Tech and Alkyl Amine, my two cash stocks, and the five FNO stocks are BEL, HAL, Zeal, Adani Enterprises, and one more stock is Shree Cement. ये 5 स्टॉक मेरे रडार पे हैं, अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, देखिए प्राइस एक्शन को रीड करिए, and I'm sure you will learn a lot of things by watching the price. So with this, I'll be signing off, and I'll be hoping to hear from you in case you're learning from my videos, in case you're earning along with me. Please give a thumbs up, share my videos with others, and do join me for the live trading every day from 10 to 11. I'll be looking forward to you, and I promise you that I'll give you the best research. Take care. Bye bye. See you tomorrow in the live trading and then in the evening video. All the best.